Assalamu alaikum, everyone. We will start shortly in a few minutes, inshallah. Assalamu alaikum, everyone. I hope you can all hear my voice, and I also hope that the screen is visible. इसके ऊपर की लाइट से करो. All right, so the purpose of this session is to help and understand students that how they will adopt the quick math strategies and how they can apply those in their examination, whether it's O level exams or A level exams or university test preparation exams, how these tricks and tips can help students understand and solve relevant questions easily. So I will start off, I will try to cover as many tricks and tips as possible in the time we have, because obviously there are numerous tricks and tips, and obviously it's not possible to cover each and every in the duration that we have, but we will try to cover as much as possible. This session is divided into two parts. The first part is quick mental math techniques, tricks and tips, and the second part is effective use of scientific calculator for verification of answers in exams. So these are the two main parts of today's session, and this session is being held uh, as a celebration of World Math Day, so that the students get maximum benefit out of it.
Are you all ready? All right. I expect you all to have calculators in front of you, but I don't want you guys to use the calculators till I tell you to use the calculators. As I mentioned, the second part of today's session will be usage of calculator, but in the first part also, in order to verify the technique that I will be uh, teaching, I would want you to use the calculators. Those attending the session live face to face, you are being provided with the Abaco calculators, and you will have to return these calculators at the end of the session. Those attending the live session face to face, you are being provided with the calculators, which you need to return at the end of the session. Those attending the session online, I request you all to have calculators in front of you, but only use the calculator when I tell you to do so, else it will not be as effective as I want it to be effective. So are you all ready? Let's begin. Bismillah. So the best way to master the quick math techniques is to practice, practice, and practice. So there is a possibility that when I am giving you a technique, you might feel that if I do it using a long methodology, I will be spending almost the same time. That might be true till you master the technique, till you have practiced enough. Once your hand is set on the techniques and tricks, you will automatically start identifying that the quick math techniques are more time saver than the regular techniques. ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, but eventually आपका हाथ सेट हो जाएगा. So the first trick that I will start off is tricks to square the numbers ending with 5. So in order to do so, the steps that we require. Also, I request everyone to have a paper and pen in front of you, because it's a hands-on session. I will be requesting you all time and again to solve certain questions using the tricks that I have just taught. So you will be needing those. So for that, I require you all to have a paper and pen in front of you so that you can perform the tasks that I will be assigning you simultaneously. Shall we begin? Is everyone ready? All right. So the first trick is to square the numbers ending with 5. So let's say 35 square. In order to do so, we will first perform square of 5. 5 square is 25. And then I will multiply the digits before 5 with one number greater than those digits. So one number greater than 3 is 4. 3 into 4 is 12. So the answer of 35 square is 1225. 75 square. 5 square is 25. Multiply 7 with one number greater than 7. 8 7 is 5625. Are you all following me? Do you feel you are faster than the calculator? Once आपका हाथ सेट हो जाएगा, जितनी देर आप कैलकुलेटर में इसको टाइप करने में लगाएंगे, उससे जल्दी आप खुद आंसर प्रोवाइड करेंगे इसका. These are 5-second techniques. Within 5 seconds, you need to answer the given question. And with practice, it's possible. Let's do another example. Let's say someone might be thinking, अगर ये 105 का square होता तो 5 का square, multiply 10 with one number greater than 10. One number greater than 10 is 11. 11 into 10 is everyone following me? Let's take another example. Let's say 65 square. 5 square, 25. Multiply 6 with one number greater than 6. One number greater than 6 is 7. 7 into 6 is 42. 4225. अब जिन लोगों को भरोसा नहीं है
वो कैलकुलेटर्स निकालें और चेक करें जितने आंसर्स हमने निकाले हैं क्या वो सारे सही हैं, क्या कैलकुलेटर भी आपको यही आंसर्स दे रहा है, चेक कर लें, तसल्ली करें। प्लीज वेरीफाई यूजिंग द कैलकुलेटर whether you are ending up with the same answers. Are you all ending up with the same answers? Sure, confident? All right, if you are sure and confident, then 15 square, 25 square, 45 square, 55 square, 65 square, 85 square, 95 square, and for all this, 5 seconds each. Your time starts now. Officially, time's up. Now let's discuss. Square of 5, 25, multiply one number greater than 5, 2. 5 square, 25, multiply 2 with one number greater than 2, 625. 5 square, 25, multiply 4 with one number greater than 4. 5 square is 25, multiply 5 with one number greater than 5. 5 square, that is 25, multiply 6 with one number greater than 6. 5 square is 25, multiply 8 with one number greater than 8. 8 into 9 is 72, 7225. 5 square is 25. 9 into 10 is 9025. I hope this is clear. I hope everyone has mastered this technique and I hope it's clear. Next. Any questions? Sure. I'll move on to the next technique. Now, tricks to square the number beginning with 5. If a number begins with 5, how to square it? So the trick is, let's say 52 square. Calculate square of 5, 25. Add second digit to it. Second digit is 2. This makes it 27. Square the second digit. 2 square is 2704. All right. I said that, let's say 53 square. 5 square is 25. Add the second digit. Second digit is 3. This makes 28. 3 square is 9. So I'll write 09. 09, 2 digits. Agree? I'll just give another example and your concept will be clarified. So the final answer is 2809. Would someone check it with the calculator? Is the same answer coming? Are you satisfied? Is this clear? All right, let's take another example. Let's say 57 square. 5 square, 25. Add the second digit, that is 7. This becomes 32. And then 7 square. 7 square is 3249. Are you all with me? Is this clear?
Have you verified using the calculator that the same answer are you all comfortable now? You had a question. Is this clear? Okay, perfect. So let's do all other numbers starting with 5. 51 square, 54 square, 55 square, 56 square, 58 square, and 59 square. Once again, 5 to 8 seconds for each question. Hurry up. Your time starts now. अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो उसको दे दें. He needs a pen and he is done. Time's up. How many of you are still doing? All right, I'll give you 10 more seconds. तुम भी बैठो करो. Shall we move on? All right. So 51 square, 5 square, 25. Add 1 becomes 26, and 1 square is 0, 1. 2601. 54 square, 5 square is 25. Add 4 to it, 29. 4 square is 16, 2916. 55 square. Now here we can use either of the two techniques, numbers ending with 5 or numbers starting with 5. Both techniques are relevant and applicable. So let's do both of them simultaneously so that we recall both the tricks and techniques. So 5 square 25, add the second digit. 5 square is 25. 3025. The previous technique that we learned, numbers ending with 5. 5 square is multiply 5 with one number greater than 5, 30. Is this clear? So once you know the trick and technique, you can apply in any connotation. So 56 square, 5 square is 25. Add the second digit. 6 square is 36. 58 square. 5 square is 25. Add the second digit. 33. 8 square is 64. 59 square. 5 square is 25. Add 9 to it. 34. 9 square is 81. 3481. Are you all with me? All right. So the next trick. So we have learned 2 tricks so far. I'm moving on to the third trick. Trick to square
any two-digit numbers. So first we learned how to square the numbers ending with 5. Then we learned how to square the numbers beginning with 5. But what about those numbers which have no relationship to 5? How to square those numbers which do not have 5 involved? So for those, there is another trick. So, and there are two different tricks to solve this particular question, this particular type of question. So I'll be going through both the tricks one after the other. So the first trick, let's say the number is 27. Square each digit separately. 2 square, 4, I will write 0, 4. 7 square is 49. Now multiply both digits and then multiply the result by 20. 2 into 7 multiply by 20. So 2 into 7 is 14. 14 into 20 is 280. 280. And now add the results. 49. 4 plus 8 is 32. 2. 3 carry. 2 plus 3 is 5. 5 2 4 9. जी जी 9 के नीचे 0 आना चाहिए था, मैंने वो गलत स्पेसिंग कर दी. So this is 280. 9. 8 plus 4 is 12. 2 1 carry. 729. Are you all with me? Sorry, मैंने गलती से आगे के डिजिट से स्टार्ट कर दिया था, हमेशा पीछे से ही स्टार्ट होता है. Is this clear? अपनी मर्जी का कोई 2 डिजिट नंबर बता दें. 68. 68 का स्क्वायर सेपरेटली पहले स्क्वायर करें. 6 स्क्वायर 36. 8 स्क्वायर 64. Now multiply 6 into 8 into 20. 6 8 is 48. 48 into 2 is 84. 840. 4. 10. 1 carry. 8 plus 6 is 14. 14 plus 1 is 15. 5 1 carry. 4 5 0 4. Is there any totaling error? 6 into 8 is 48. 960, sorry. There's a totaling error. 6 into 8 into 20. 6 8 is 48. 48 into 2 is 96. 960. 4 2 1 carry. 16 6 1 carry. 4 6 2 1. Is everyone following me? Is everyone following me? All right. Another number. 73. 10 square is 100. So there is no fastest trick than 10 square of 100. So उसकी जरूरत नहीं है. 3 square is 9. So we will write 09. 7 square is 49. Now I will multiply 7 by 3 multiply by 20. 7 into 3 is 21. 21 into 20 is 420. 420. 7 into 3 is 21. 21 into 20 is 420. So this becomes 9, 2, 5, 3, 2, 9. Is everyone following me? Is this trick clear? All right. Let's say square of 41. Hurry up. 41 square, 22 square, 39 square. जल्दी से ये तीन करके दिखाइए.
41 square, 22 square, 39 square. All three? Excellent. Last 10 seconds for everyone else. Time's up. How many of you are still doing? करें, continue करें. कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है. ट्रिक्स अप्लाई करनी जो सिखा रहा हूं, वरना क्या फायदा इतनी मेहनत करवाने का. चलें, 41 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 01, 4 स्क्वायर इज 16. नाउ multiply 4 by 1 by 20, that is 80. So the final answer becomes 1681. वेरीफाई जिन्होंने कर लिया है कैलकुलेटर से, यही आ रहा है, ठीक है. 22 का स्क्वायर 04, 04 मल्टीप्लाई 2 by 2 by 20, 80. So this becomes 484. I hope everyone is following me. 39 square, 9 square is 81, 3 square is 09. Now multiply 3 by 9 by 20. 3 into 9 is 27, 27 into 2 is 54, into, because of 0, that's 540. So the final answer becomes 1, this is 2, and 1 carry, 1521. Am I clear? So there is another technique of doing the same thing. There is another trick which will give us the same answers. I want someone to note down all the numbers that we have squared so far, so that I give the another trick using these numbers only. Someone has the numbers? All right. So the other technique is known as the butterfly technique. Now, what is the butterfly technique? So what was the first number that we used? 27. 27 square. 27 square means 27 multiplied by 27. So butterfly technique states that I will multiply 7 by 7, 49. 2 by 2, 4. I will write 04. Agreed? जब भी सिंगल डिजिट आएगा हम 0 करके लिखेंगे. 2 डिजिट. अभी तक जितनी ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाई हैं, सब में जहां सिंगल डिजिट आ रहा है मैं 0, 2, 0, 1, 0, 5, 0, 4 इस तरह करके लिख रहा हूं. Now I will multiply 2 by 7 and 7 by 2. 2 by 7 is, and 7 by 2 is 14. ये जो मल्टीप्लाई किया है उनको बीच में लिखा है, ठीक है. So this becomes 9, 12 to 1 carry, 729. 4 plus 1 5, 6 and 7, 729. सेम आंसर आया, सेम आंसर आया. ये दूसरी टेक्निक है. ये टेक्निक क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. एक टेक्निक पे क्यों मैं नहीं रुक गया. Why am I introducing another technique? Because I have to use that in future also. ठीक है. अगला नंबर क्या था? 68. 68 square means 68 multiplied by 68.
68 multiplied by 68, and I will once again use the butterfly technique. 8 into 8, 64. 6 into 6, 36. Tables याद होने चाहिए. 6 into 8, 48. 6 into 8, 48. टेबल याद नहीं होंगे तो कोई मैथ टेक्निक नहीं हो पाएगी. Now start adding them up. 4, 8, 8, 16. 16 plus 6 is 22. 2 carry. 6, 4, 10, 14, 16. 6, 1 carry. 4, 6, 2, 4. Please check करिए ये आंसर था. Is everyone following me? Is everyone following me? Next. अगला नंबर क्या था? 73. Multiply by 73. Let's apply the butterfly technique to this. 3 into 3, 9. 0, 9 लिखेंगे. 7, 7, 49. Now cross multiply. 7, 3 is 21. 7, 3 is 21. Are you all with me? 9, 2, 13, 5, 3, 2, 9. Is everyone following me? पक्का? What were the other numbers? कोई मुझे बताएगा? बाकी सारे नंबर्स बता दें या छोड़ें, बाकी नंबर्स ना बताएं. चलें, 19 का स्क्वायर निकालें. 21 का स्क्वायर निकालें. 68 का स्क्वायर निकालें. अच्छा निकाल चुके हैं 68 का स्क्वायर. 48 का स्क्वायर निकालें. 99 का स्क्वायर निकालें. And using the butterfly technique. पेपर पेन ले लो बेटा. कितना मोबाइल में काम करोगे, उतनी स्पीड से काम ही नहीं कर सकोगे. Can we get some extra papers and pens so that क्या चीज? हाँ वो अलग चीज. शाबाश. बाकी लोग भी जल्दी से करें. Last 10 seconds for those who are still doing. Chale, let's do it. So let's apply the butterfly technique. 9 into 9 is 81. 1 into 1 is 0, 1. Now 1 into 9 is 9, 0, 9. 1 into 9 is 9, 0, 9. I'm struggling with the space. 19, 19. 9 into 9 is 81. 1 into 1 is 0, 1. 1 into 9 is 9.
1 into 9 is 9. 1. 9 and 9 is 18. 18 plus 8 is 26. 6 to carry. 1, 2, 3. 361. 48 square is 48 into 48. 8 into 8 is 64. 4 into 4 is 16. 4 into 8 is 32. 4 into 8 is 32. And now let's add them up. 4, 10, 0, 1 carry. 6, 6, 12, 13, 3, 1 carry. 2, 3, 0, 4. Am I clear? 99 square. 99 into 99. 9 into 9. 9 into 9. 9 into 9. 9 to 9. 1, 0, 1 carry. 8, 1 carry. 9, 8, 0, 1. Do you all agree? सबको समझ में आ रही है ट्रिक्स? सो मैंने बटरफ्लाई टेक्निक क्यों इंट्रोड्यूस करी? जो मैंने पहले एक ट्रिक सिखा दी, तो क्या जरूरत थी दूसरी ट्रिक और सिखाने की? इसलिए कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर्स हो, अभी तक तो हम सिर्फ स्क्वायरिंग की बात कर रहे थे ना, अब नाउ मल्टीप्लाइंग एनी 2 डिजिट नंबर्स, कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, वी कैन अप्लाई द बटरफ्लाई टेक्निक. कोई से भी 2 नंबर्स बता दे मुझे अपनी मर्जी के. 73 मल्टीप्लाई बाय 62 की फरमाइश आई है, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 62. 3 इंटू 2 क्या लिखूंगा? 06 लिखूंगा. 7 इंटू 6 क्या लिखूंगा? 42. नाउ 7 इंटू 2 इज 14. 3 इंटू 6 इज 18. 6. 8 plus 4 is 12. 2, 1 carry. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 2, 6. प्लीज चेक करें, वेरीफाई करें कैलकुलेटर से कि क्या कैलकुलेटर से भी यही आंसर आ रहा है. ऑब्वियसली आएगा, लेकिन भरोसा नहीं है तो तसल्ली कर लो. हो गई तसल्ली? इज दिस क्लियर? अपनी मर्जी के 2 और नंबर्स बताएं. 88 इंटू 99. चले, बटरफ्लाई टेक्निक. 8 इंटू 9 इज 72. 8 इंटू 9 इज 72. क्रॉस मल्टीप्लाई. 8 इंटू 9 इज 8 into 9 is 2. 11. 1, 1 carry. 7, 7 is 14. 15, 16, 17. 7, 1 carry. 8, 7, 1, 2. चेक कर ले भाई कैलकुलेटर में, सेम आंसर आ रहा है? अग्रीड? बताएं अपनी मर्जी के 2 नंबर. द नंबर ऑफ योर चॉइस. 29 and 44. 29 and 44. 9 into 4 is 36. 2 into 4 is 08. Agreed? 2 into 4 is 08. 9 into 4 is 36. 6, 17. 2, 1 carry. 1, 2, 7, 6. Am I clear? तो ये सारी ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं उन पेपर्स के लिए जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आपको मेंटल मैथ यूज करनी है, दिमाग तेज करना है. तो आगे बढ़े. फोर्टी थ्री इंटू 29. 57 into 68. 31 into 72. 35 into 14.
63 into 70। चलें जल्दी से 10 seconds for each, which means 50 seconds. Your time starts now. Shabash. How many of you are done? Only 2. Hurry up. Speed up, everyone. As I mentioned in the beginning, ये टेक्निक्स हो सकता है इनिशियली थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट जब आप इस पे हाथ आपका सेट हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़े टाइम सेवर्स हो जाएंगे। शाबाश। कैलकुलेटर से नहीं करना है, कैलकुलेटर सिर्फ वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करना है कि आप ठीक है कि नहीं है। टाइम्स अप। चलें 43 into 29, 3 into 9, 4 into 2, 9 4 is 3 into 2 is 7, 14, 12, 2 1 carry, 1 2 4 7, 57 into 68, 8 7 is 5 6 is 5 8 is 6 7 is 6 7 8 3, 31 into 72, 1 into 2 0 2, 3 7 21, 1 into 7, 3 into 2 2, 13, 3 1 carry, 2 2 3 2. I hope everyone is following me. 35 into 14, 5 into 4, 3 into 1, 3 into 4, 5 into 1, 0 9 4 490. I hope everyone is following me. Last 63 into 17, 3 7 into 3, 6 into 1, 6 7, 3 1, 1 7 0 1, 1 0 7 1. I hope this is clear to all. I hope everyone is becoming comfortable. Next, अभी तक हम मल्टीप्लायों की टेक्निक सीख रहे थे, अब थोड़ी प्लस की सीखते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1। बहुत बार हम इनकाउंटर करते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं, और मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास टेक्निक है। सम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स विल बिकम न्यूमरेटर
and product of both denominators will become denominator. So for example, 1 upon 5 plus 1 upon 7. Sahi? So sum of both denominators, 5 plus 7, 12. 5 into 7, this is the answer. भरोसा तो होगा नहीं, कैलकुलेटर निकालो, तसल्ली करो. 1 upon 5 plus 1 upon 7 and it's 12 upon 35. Agreed? टेबल्स आने चाहिए, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं. अगर टेबल्स आते हैं तो यू विल बिकम फास्टर देन द कैलकुलेटर व्हेन इट कम्स टू क्विक मैथ. 1 upon 3 plus 1 upon 4. 4 plus 3, 3 into 4. Agree? 1 upon 9 plus 1 upon 6. 9 plus 6, 9 into 6. Are you all with me? अगर कोई चीज सिंप्लीफाई होती हो तो ऑब्वियसली उसको फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 5 is 15 and 3 18 is 54. 5 upon 18 will become the final answer. Agree? वो secondary step है. Are you all with me? Let's say 1 upon 2 plus 1 upon 9. चले, इसके बाद आपकी मर्जी की करूंगा. बताइए. 9 plus 2, 9. कैसा? सही? मैंने तो नहीं बोला ऐसा. मैंने तो आपको बताया है कि सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स इज द न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर. ये ट्रिक है. ट्रिक है ना, ट्रिक तो ऐसे होती है कि झटपट हो जाए. अग्री? 1 अपॉन, फिलहाल हम सीख रहे हैं जिसका न्यूमरेटर बने. 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3. चलिए 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर कर लें. शाबाश. Done? All of you? Paka? So this becomes 7 plus 4 is 11. 7 into 4 is 3 plus 2 is 5. 3 2 is 9 plus 4 is 13. 9 into 4 is 5 plus 3 is 3 5 is और आई जी. तो अगर हम एक स्टेप ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें. 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 11, 1 upon 7 plus 1 upon 12, 1 upon 3 plus 1 upon 10. सेम ट्रिक्स. शुरू हो जाओ. 10 seconds रिमेनिंग. अब टाइमर तेज चलेगा. शाबाश. अच्छा, अभी तो हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं ना. इसका नेक्स्ट वर्जन ही होता है, मतलब अगर हम इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम तेज हो जाएंगे, तो आज तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा, बट इसका नेक्स्ट वर्जन ही होता है, आप पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
The next version will be you'll see and you'll respond, you'll see and you'll respond, you'll see and you'll respond. इवेंचुअली उस स्पीड पे आना होता है, एंड ये प्रैक्टिस से आ जाएगा. थोड़े दिन ये जो ट्रिक्स आज सिखाऊंगा, थोड़े दिन आप अप्लाई करेंगे एंड यू विल रियलाइज के तेज हो गए इंशाल्लाह. सो 11 plus 5 16, 11 into 5 55, 7 plus 12 19, 7 into 12 84, 10 plus 3 शाबाश. 2 3 सेकंड्स लग रहे हैं एक एक सवाल करने में. Shall we move on? अभी हम क्या कर रहे थे? फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे, अब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. शुरू करूं? सेम टेक्निक फॉलो करनी है. सब्ट्रैक्ट बोथ डिनोमिनेटर्स एंड तो वो बन जाएगा न्यूमरेटर. मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर्स तो वो बन जाएगा डिनोमिनेटर. सही. लेट्स बिगिन. So let's say 1 upon 5 minus 1 upon 8. ठीक है. तो 8 minus 5, 8 into 5 is 40, 3 upon 40. सेकेंड डिनोमिनेटर माइनस द फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये याद रखिएगा. क्योंकि प्लस में तो मसला नहीं होता, प्लस में पहले क्या हो बाद में क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस में पहले क्या हो बाद में क्या हो फर्क पड़ता है. ठीक है. तो इस वजह से सेकंड वाला पहले, फर्स्ट वाला बाद में. सो 1 upon 7 minus 1 upon 9. बताओ. 7 minus 9 is 2, 2 upon 6. ठीक है. 1 upon 3 minus 1 upon 11. So 11 minus 3 is 8 upon 33. Agreed? 1 upon 6 minus 1 upon 5. Shabash. Minus 1 upon 30. Sign will matter. 5 पहले 6 बाद में. 5 minus 6 is -1, -1 upon 30. सब फॉलो कर रहे हैं? समझ आ रहा है? One upon 15 minus 1 upon 4, 1 upon 8 minus 1 upon 9, 1 upon 3 minus 1 upon 7, 1 upon 4 minus 1 upon 2. Hurry up. Shabash. शाबाश शाबाश. बाकी लोगों को भी करने दें. तो 4 minus 15 upon 4 into 15 is 60, minus 11 upon 60. Agreed? 9 minus 8 is 1, 8 9 is 72. 7 minus 3 is 4, 7 into 3 is 21. 2 minus 4 is minus 2 upon 8, that is minus 1 upon 4. All good, all clear? समझ आ रहा है? तेज हो रहे हैं? ट्रिक्स टू स्क्वायर एनी परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक थोड़ी बेसिक चीज है, एक थोड़ी एडवांस चीज है.
मैं फिलहाल बेसिक वाली करवाऊंगा, एडवांस वाली अगर हमें सेशन के एंड पे टाइम बच गया तो करवाऊंगा, क्योंकि वरना उसमें ऑलमोस्ट पूरा सेशन उसी एडवांस वाली ट्रिक को सीखने में लग जाएगा। वो सीखने के बाद बहुत छोटा है, वो सीखने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है। बट अगर टाइम बच गया एंड में तो वो करवा दूंगा, अदरवाइज आई स्टिक टू अ सिंपलर वाली टेक्निक। द सिंपलर वाली टेक्निक है जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके मल्टीपल्स के पेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 into 3। तो किसका पैर बन गया? 3 का पैर बन गया, 3 आंसर हो गया। अंडर रूट ऑफ 16, 4 और 4 का पैर बन रहा है, 4 आंसर हो गया। अंडर रूट ऑफ 36, 6 और 6 का पैर बन गया, दैट इज 6। अंडर रूट ऑफ 144, 12 एंड 12 का पैर बन गया, 12 आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर टेबल्स याद है तो ये तो जल्दी हो गया। अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें हम, लेट्स से 256 होता। ठीक है, तो हम एक ट्रिक ये यूज कर सकते हैं कि हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2, 128, 64, 32, 8, 16, 8, 4। अग्रीड? सो कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 एंड 2 × 2। दो टू का पैर बना, दो टू का पैर बना, दो टू का पैर बना एंड दो टू का पैर बना। 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 8 × 2 is 16। अग्रीड? जिस जिस चीज के पैर बनते जाएंगे वो स्क्वायर रूट के बाहर आता जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। लेट्स से कोई नंबर होता अंडर रूट ऑफ 1764। ठीक, 1764 की एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 is 18, 2 8 is 16 and 2 2 is 4। अग्री? 3, 1 is 3, दोबारा कर लेते हैं। 2 8 is 16, 16 बचा, 2 8 is 16, 2 2 is 4, 2 4 4 1 3, 3 1 is 3, 14 बचा, 3 4 is 12, 2 बचा, 3 7 is 21, 3 4 is 12, 3 9 is 27, 7 7 is 49, 7 1 is 7। So 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। So दो 2 का पैर बना, दो 3 का पैर बना, दो 7 का पैर बना। 2 3 is 6, 6 7 is वंस अगेन, जिनको भरोसा नहीं है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके तसल्ली कर लें। ठीक है, हम 1 सेकंड रुकेंगे अजान के लिए, अजान खत्म हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलें जी, अगर अंडर रूट ऑफ 7056 होता, करिए इसी वाले मेथड से, लैडर मेथड से एलसीएम निकालते हुए। एक्चुअली में अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप लोग चले जाएं। जितने लोग फेस टू फेस सेशन में बैठे हैं उनको करना है साथ में। प्लीज पेपर पेन निकालें, करें साथ में, वरना चले जाएं। शुक्रिया। शाबाश। जल्दी से वाइंड अप करें बाकी लोग। लैडर मेथड से पहले एलसीएम निकाली, 23528, 2764, 2882, 2441, 3147, 349, 771. So 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. 2, 2, 3, 7. 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 7 is, सही है? Are you all with me? Do you all understand? इसमें एक और इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। अगर कोई ऐसा नंबर है, let's say 3600, so I will not go through the hassle of finding the LCM through ladder method. What I will do is, दो zeros का pair बना, under root of 36 is 60. Is this clear? Under root of 490,000, under root of 49 is दो zeros का pair, दो zeros का pair. Is everyone following me? 81 million. Under root of 81 is 9. Pair of two zeros, pair of two zeros and pair of three zeros. 9,000. Is everyone following me? बताइए। शाबाश। अंडर रूट ऑफ 144 is 12, दो zeros का pair 120. I hope everyone is following me and everyone is understanding all the tricks. अगर कोई परफेक्ट क्यूब हो और उसका क्यूब रूट निकालना हो, तो स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर्स बनाते हैं, क्यूब रूट में तीन तीन के पेयर्स बनाते हैं। ठीक है? तो लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन टूस का पेयर बना, 2 आंसर हो गया।
क्यूब रूट ऑफ 125 है, so we know 5 into 5 into 5 is 125. 5 आ गया. Agree? If we follow the technique that we learned previously, if it is cube root of, let's say, 64,000, I know that the cube root of 64 is 4. 4 into 4 is 16. 16 into 4 is 64. Cube root of 64 is 4. And 3 zeros का pair बना. What? Is everyone following me? Let's say cube root of 27 million. Shabash. Cube root of 27 is 3. Is everyone following me? Cube root of 216. अब सोचना पड़ेगा, और जहां सोचना पड़ेगा वहां हम अप्लाई कर देंगे लैडर मेथड. अग्रीड? तो 216, 2108, 254, 227, 393331. 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. अग्री? आर यू ऑल विद मी? सब फॉलो कर रहे हैं? करिए खुद से. कौन सा वाला? आर यू श्योर? अच्छा, मैंने फिर बनाने में कोई गड़बड़ कर दी? मैंने एक 8 ज्यादा लिख दिए. सॉरी, दोबारा कर लें. 74088, 274400.
टाइम्स अप। चलें, कंटिन्यू करें। और जी पहला वाला 74088, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 37044। डू यू ऑल एग्री? फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 218522। डू यू ऑल एग्री? 29, 2 is 4, 2 6 is 12, 9261। अग्रीड? 3 से करते हैं, 3 3 is 9, 330 is 90, 3 8 and 7, 3 1 0 2 9, 3 3 4 3 7 49 7 7 7 1। So 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 7 into 7 into 7. So we make pairs of 2, we make pairs of 3, and we make pairs of 7. 42. 2 into 3 is 6, 6 into 7 is 42. Agreed? इस वाले में अगर सब किसी ने पूरे को करना शुरू कर दिया तो टाइम जाया होगा। हमें पता है कि 3 जीरोस का एक पेयर बन के 0 हो जाना है। सो मुझे लैडर अप्लाई करना है 2744 पे। अग्रीड? 2 13 7 2, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 6 is 12, 2 3 4 3 7 49 7 7 7 1. So 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7, and there are 3 zeros जो हम already 0 नीचे लिख चुके हैं। 2 into 7 into 10. Are you all with me? 140. Is everyone with me? Do you all agree? समझ आ गया सबको? आगे बढ़ सकते हैं? Conversions of decimals into fractions. So whenever we are encountered with a decimal, for example 0.4, हमें decimal places check करनी पड़ती हैं. If it's one decimal place, it can be written as 4/10, which will simplify itself into 2/5. 0.75, 75/100. 25 3 is 75, 25 4 is 100, 3/4. I hope everyone is following me. 0.125, 125/1000,
25, 5 is 125, 25, 4 is 100, 5, 1 is 5, 5, 8 is 40. Is everyone comfortable? चलिए जल्दी से 3 कीजिए. शाबाश. कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे ना? पहला is 3/10, दूसरा is 14/100, which is same as 7/50, 98/100, which is same as 49/50. I hope everyone is following me. 0.6, 0.15, 0.36, 0.144, 0.85, 0.123, 0.165. चलिए हरी अप, खुद से करें, जल्दी से, तेजी में. शाबाश. How many of you are still doing? Itchy. बस छोड़ दो, आ गया पीछे से पेज. Are you all done? So 0.6 is 6/10. That is 3/5. 0.15 is 15/100. That is 3/3 by 20. 0.36 is 36/100. 4 nines are 425. 9/25. 0.144 is 144/1000. 16/125. 85/100. 5. 20 and 17. 17/20. 123/1000 cannot be simplified further. 165/1000. 5, 5, 200, 5, 533, 33/200. Is this clear? So far so good. अगर ये होता 2.8 और सिंप्लीफाई हो जाएगा. अगर ये होता 3.5
So this would have become 28 upon 10, that is 14 upon 5. This would have become 35 upon 10, 7 upon 2. Am I clear? So far, so good. 0.144 दोबारा देख लेते हैं, हो सकता है मैंने जल्दी में गड़बड़ कर दी हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं. All right, 144 upon 1000, 272, 2 500, 236, 250, 18, 125. Agreed? Am I clear, everyone? Conversions of fractions into decimals. Let's say 3 upon 5 is a fraction. I wish to convert it into decimal. I have no other methodology except long division. So this is 3, this is 5. I will introduce decimal. This will become 30. 5 6 is 30. 0.6. Are you all with me? 7 upon 4. 4 1 is 4. I'm left with 3. I introduce a decimal here. It becomes 30. Decimal gives me the ability to write 0 in each step. हर step में मैं एक 0 लिख सकता हूँ. 4 7 is 28. 20. 4 5s are 20. 1.75 is the answer. Let's say if this would have been 3 upon 80. So हम 3 लिखते 80 लिखते, डेसिमल इंट्रोड्यूस करते तो 0 आता. डेसिमल गिव्स अस द एबिलिटी टू राइट 1 0 इन ईच स्टेप. हर स्टेप में सिर्फ एक 0 लगा सकता हूं, लेकिन 30 80 से अभी भी छोटा है. सो मुझे यहाँ पे अगर 0 ऐड करना है तो मुझे डेसिमल के बाद 0 लगाना पड़ेगा. I will have to write 0 after decimal in order to ensure कि ये 300 बन जाए. 8 3 is 24, 240, 60. I can add a 0 because decimal has given me the ability कि मैं हर step में एक 0 लगा सकूं. 8 7 is 56, that is 560. 40, 0, 5 is 400, and hence the answer is 0.0375. I hope everyone is following me. Four upon 500. डेसिमल लगाया 40, 0 के बाद 0 and 0 के बाद 0. 5 8 is 4000. 0.00. Am I clear? So far so good.
Is there any confusion? Any questions so far? Next. A little while back, we learned the tricks how to find square root and cube roots, right? But if we need to find a square root or a cube root of a number, which is a decimal number, for example, 0.0009. So the best way to solve such questions is to first convert it into fraction. This will become 9 upon 10,000. Under root of 9 is? Under root of 10,000 is? The answer is? Am I clear? Let's say 0. So this will become 16 upon 1 million. Do you all agree? Under root of 16 is? दो zeros का pair, दो zeros का pair, दो zeros का pair. That is 0.004. Are you all with me? Let's say if this would have been cube root of 0.008. Cube root of 0.008 is same as cube root of 8 upon 1000. Cube root of 8 is 2. Cube root of 1000 is 10. 0.2. Agreed? Let's say cube root of 0.000064 and square root of 0.000064. Kindly do it yourself. Twenty seconds remaining. क्या 0.04 और दूसरा कुछ गड़बड़ है वैसे सही है एक 0.008 है so this is 64 upon 1 million and it's a cube root of 64 is 4 cube root of 1 million is 100 so this is 0.04 and when I talk about square root 64 upon 1 million under root of 64 is 8 दो zeros का pair दो zeros का pair दो zeros का pair 0.008 is this clear are you all comfortable now यहां तक सबको सारी ट्रिक्स क्लियर हो रही हैं so conversion of decimals and fractions into percentages कभी भी हमें decimals या fractions को percentage में convert करना हो all we need to do is multiply by 100 ठीक है so अगर let's say 0.125 and I wish to convert it into percentage I will multiply by 100 so this will become 12.5%. If it is 0.65 I will multiply by 100 65%. If it is 1.4%, I will multiply by 100, it will be 140%. I will multiply 1.4 को percentage में convert करना है ठीक है 3 upon 4 को percentage में convert करना है multiply by 100 4 25 is 100 that is 75%. Agree? 8 upon 5 को percentage में convert करना है
160%. Is everyone following me? चलें जी, जल्दी से सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। डन। 35%, 45%, 125%, 350%, 75%. Agreed? Alright, so यहाँ पे हम अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द, मैंने बोला था ना सेशन दो हिस्सों में डिवाइड है। एक क्विक मैथ, मेंटल मैथ। मेरे पास क्विक मैथ, मेंटल मैथ करवाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक आध और चीज देख लें, फिर हम होल्ड करते हैं और फिर हम मूव कर जाएंगे सेकेंड पार्ट पे, विच इज अफेक्टिव यूज ऑफ कैलकुलेटर, जिससे हम अपने आंसर्स को वेरीफाई करके इंश्योर कर सकते हैं कि जिन पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड हो उसमें कैलकुलेटर का इफेक्टिव इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, सो दैट वुड बी द सेकंड पार्ट ऑफ माय सेशन एज आई discussed at the beginning. So I am coming to the end of the first part. जिस तरह हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अगर परसेंटेज दी हो तो हम डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको बोला है 80% and I wish to convert it into decimal or fraction. I have to divide by 100. चाहे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितने जीरो से डिवाइड हो रहा होता है उतने जीरो डेसिमल पीछे मूव कर जाता है। So this will be 0.8 and this will be 4/5. अगर 110% को कन्वर्ट करना है, 110/100, सो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 11/10, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1.1. आर यू ऑल विद मी? सो 35% को और 115% को, 165% को, 44% को प्लीज कन्वर्ट करिए डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जल्दी से। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। शाबाश। डन। So decimals and fractions, 35/100 is 0.35, 35/100, 5/7 is 35, 5/20 is 100, 7/20. Do you all agree? 165 decimals में will be 1.65, 165% will be 1.65, fractions में 165/100, 33/20.
115% decimals and fractions. Decimals में it will be 1.15. Fractions में it will be 115 upon 100. That is 523 upon 20. 44% in decimals will be 0.44. And in fractions, it will be 44 upon 100, 411 and 425, 11 upon 25. Is this clear? Is this clear, everyone? So next is adding strings of numbers. Sometimes we are provided with lots of numbers and we need to add them. Strings of numbers को करने की टेक्निक ये होती है, always look at the last digit and identify किसके pairs बन रहे हैं comfortably. Please note करें, 2 and 8 will become 10, 3 and 7 will become 10, 9 and 1 will become 10. तो 30 तो ये हो गए. 2 and 8 10, 9 and 1 10, 7 and 3 10, 30 ये हो गए. Agreed? एक 10th digit पे 1 आ रहे. Agree? ये भी हो गया 10 and बाकी hundreds हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600. So the answer is 640. ये अभी भी बहुत स्लोली किया है. ये स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स जब आपकी स्पीड तेज होगी आप देखेंगे और आंसर देंगे. ठीक है, मैं दोबारा कर बता रहा हूं. आई नीड योर अटेंशन. 2 and 8 10, 3 and 7 10, 9 and 1 10, 30 हो गए. 10th डिजिट पे एक 1 है 10, 30 plus 10 40 एंड हंड्रेड्स पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 640. देखिए जी नेक्स्ट वाला 9 and 1 10, 2 and 4 6, 400 200 300 500 and 700. Total becomes 716 816. I am sorry 816. दोबारा कर रहा हूं मैं. 9 110 10 plus 4 plus 2 is 16. 2 3 4 5 6 7 8 816. इसको स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स बोलते हैं जिनमें कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको देख के आप सारे नंबर्स को क्विकली ऐड कर सकते हैं. 3 7 is 10, 6 and 4 is 10, 6 and 4 is 10. Agreed? और आई जी सेकेंड डिजिट्स पे 8 9 10 makes 100 and 100 digit पे 8 10 13 14 17 18 1800. So this becomes 1930. Agreed? 2 plus 8 10, 3 plus 7 10, 5 plus 5 10, 10th digit पे 1 plus 7 8, 8 plus 2 10 100 and 100th digit पे 300 500 600 800 1000 1100. 1230. Am I clear? Am I clear? Yes. जिनको भरोसा ना हो वो कैलकुलेटर में डाल के टोटल करके चेक कर. All good, all clear? Now we'll move on to some effective usage of scientific calculator. कि हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विद कैलकुलेटर वाले पेपर में हमें करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. सो ऑल दोज अटेंडिंग द सेशन फेस टू फेस हैव कैलकुलेटर्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी. अगर किसी के पास कोई पुराने मॉडल का कैलकुलेटर हो तो प्लीज वो किसी से ले ले. मतलब वो अबाको टीम से रिक्वेस्ट कर दे
कि कैलकुलेटर्स उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जो है वो सब सेम पेज पे हों, सेम पेज पे हों, और हम उन टेक्निक्स को सीख रहे हों। So if appropriately used, the scientific calculator is a time-saving gadget for students and teachers. लेकिन appropriately used हो। सबके पास कैलकुलेटर्स उनके सामने है। Those attending the session online, I would request you all to please have a scientific calculator in front of you, so that the techniques that I am now telling you to speed up the process of the verification of your answer are able to do so. अच्छा जी, ये जो मेंटल मैथ टेक्निक्स थी वो हम कोशिश कर रहे थे विद इन 10 सेकेंड्स अपने आप को लिमिट करें और मेंटल मैथ को क्विकली कैलकुलेट करें। जहां पे कैलकुलेटर अलाउड होता है वो ऑफिशियली एक लेंथी क्वेश्चन होता है, जिसको करने में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, समटाइम्स उससे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। विद द हेल्प ऑफ effective usage of scientific calculator, we can verify the answers in 30 seconds. So we call it a 30-second check. So that अगर आप ऐसा पेपर कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप विद इन 30 सेकेंड्स अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकें आफ्टर यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सारे फीचर्स को रन थ्रू तो नहीं कर सकूंगा जो कैलकुलेटर्स में अवेलेबल है, 550 से ज्यादा फीचर्स हैं। I will only be able to run through a few features which are commonly used, ताकि थोड़ा सा हाथ सेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, each question should take you less than 30 seconds to verify or solve through scientific calculator, as I said. So वेरिफिकेशन से फायदा क्या होगा? जब कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, तो मैं मैन्युअली पूरा सॉल्व कर रहा हूं, मेरा आंसर आ गया। सो हाउ डज दैट हेल्प मी? इट इमीडिएटली इन्फॉर्म्स यू कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। अगर आपने कैलकुलेटर में डाला, आपका आंसर वही आ रहा है जो आपने निकाला है फुल वर्किंग करके। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है, एंड यू कैन रीवर्क। सही। सो कैलकुलेटर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द वर्किंग्स ऑफ द पेपर, but calculator is a tool that is used to verify your answers, to check and ensure whether you are doing everything correctly or not. So are you all ready? And once again, just like mental math practice से improve होगी, इसी तरह scientific calculator का effective usage भी practice से बेहतर होगा। So let's first try to resolve the equation, कि हम equations कैसे solve करेंगे calculators के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, I would request you all to first reset your calculators. कैलकुलेटर रीसेट करने का तरीका होता है, यू प्रेस शिफ्ट। कैलकुलेटर में सबको शिफ्ट नजर आ रहा है? यू प्रेस 9। आपने शिफ्ट के बाद 9 प्रेस किया। आर यू ऑल विद मी? वंस आपने शिफ्ट के बाद 9 प्रेस किया तो वो आपसे पूछ रहा है रीसेट करना है सेटअप डेटा, मेमोरी या इनिशियलाइज ऑल। प्रेस 3। अब आपसे पूछ रहा है रीसेट ओके इज इक्वल टू प्रेस कर दें, एंड उसके बाद जो ब्लू बटन है एसी वाला, उस बटन को प्रेस कर दें। अब आप सबका कैलकुलेटर रीसेट हो चुका है, यानी जो फैक्ट्री रीस्टोर सेटिंग्स होती है ना, वो फैक्ट्री रीस्टोर सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब इसको कुछ फीचर हमने इनपुट नहीं किया हुआ है। नाउ इफ आई विश टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन माय कैलकुलेटर, 4/x इज इक्वल टू 32/48। नॉर्मली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में इसको कैसे करेंगे? आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज प्रेस 4
देन प्रेस, कैलकुलेटर के अंदर आपको एक ऐसा बटन नजर आ रहा होगा OPTN, यानी ऑप्शन के नीचे। सबको नजर आ गया? तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका 4 लिखा हुआ आ जाएगा। एंड प्लीज नोट करें, ऑन बटन के नीचे, बिल्कुल ऑन बटन के नीचे X लिखा हुआ है। लिख लिया? क्या सबके कैलकुलेटर में इस वक्त ये पोजीशन है कि 4/X लिखा हुआ है? अब आप राइट स्क्रॉल, जो आपको राइट स्क्रॉल की है उसको स्क्रॉल कर दें। जो राइट मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट वाली की होती है, राइट वाली की प्रेस कर दें। तो अब आपका जो कर्सर है वो यहां पे कहीं होगा। क्या सबका कर्सर यहां पे है? अब आप प्रेस करेंगे अल्फा एंड कैलकुलेट। अपने कैलकुलेटर के अंदर आप नोट करें, अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेड से अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो रेड से अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने उसको प्रेस किया और उसके बाद CALC कैलकुलेट को प्रेस किया। जब आपने ऐसा किया तो कैलकुलेटर पे इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा। क्या सबके कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ आ गया? उसके बाद फिर से फ्रैक्शन बटन दबा दें। फ्रैक्शन बटन, ये वाला बटन, प्लीज दोबारा से फ्रैक्शन बटन दबाएं। क्या सबने फ्रैक्शन बटन दबा दिया? अब फ्रैक्शन बटन दबाने के बाद 32/48 लिख लें। इज इक्वल टू मत दबाइएगा प्लीज, 32 और 4/48 लिख लें। क्या सबके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? 4/x इज इक्वल टू 32/48। क्या सबके कैलकुलेटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है? ठीक है। अब आप दबाएंगे शिफ्ट, शिफ्ट दबाया और फिर कैल्क दबाया, जिसका मतलब है सॉल्व। अग्री? तो आप नोट करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एक हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आ रहा है। ये हाईलाइटेड फॉर्म में x इज इक्वल टू 0 नजर आ रहा है। अग्री? आ रहा है सबका? इज इक्वल टू प्रेस कर दें। अब जब आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज 6 और L माइनस आर इज इक्वल टू 0। L माइनस आर इज इक्वल टू 0 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अग्री? L माइनस आर इज इक्वल टू 0 होना जरूरी होता है टू इंडिकेट कि आपने सही काम किया है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। अग्री? जो लोग जिंदगी में पहली बार ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पहली बार यूज करने में इतना टाइम लग रहा है, वंस अगेन जब हाथ सेट होगा तो फौरन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? आई वॉन्ट यू ऑल टू रीडू द सेम क्वेश्चन नाउ एंड अपने हाथ को सेट करें। क्या करेंगे? फ्रैक्शन बटन दबाएंगे 4/x, शिफ्ट कैलकुलेट दबाएंगे, सॉरी अल्फा कैलकुलेट दबाएंगे, विच विल गिव यू 4/x। अल्फा कैलकुलेट तो इज इक्वल्स टू आ गया, फिर फ्रैक्शन बटन दबाया, 32/48 किया, शिफ्ट कैलकुलेट दबाया और फिर इज इक्वल टू दबाया, तो आपके पास x इज इक्वल टू 6, L माइनस आर इज इक्वल टू लिखा 0 नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या सब कर पा रहे हैं? हैज एवरीवन रीच्ड दिस स्क्रीन? तो x 0 आया था, अब क्या तो x 6 आ रहा था। उसकी वजह यह है कि वो x की वो वैल्यू आपको दिखा रहा होता है जो कैलकुलेटर के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो हमने इससे पहले रीसेट कर दिया था अपना कैलकुलेटर, तो दोबारा से अगर कैलकुलेटर रीसेट करोगे तो दोबारा 0 शो करेगा और फिर इज इक्वल टू दबाओगे तो फाइनल आंसर आएगा। अभी भी 2 ही बार इक्वल टू दबाना है। जो हाईलाइटेड x इज इक्वल टू 6 है वो आंसर नहीं है। जो फाइनल आंसर है वो x इज इक्वल टू 6 की वो वाली वैल्यू है जो फाइनल वैल्यू है। इज दिस क्लियर? क्या सबने दोबारा से खुद से सॉल्व करके देखा पहला वाला? हो रहा है? आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई द सेकेंड वन। प्लीज ट्राई द सेकेंड वन।
ये आप लोग थोड़े से करेंगे ना अभी तो हाथ सेट होगा, तो पता चलेगा कैलकुलेटर कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करा जा सकता है। आप पूरी इक्वेशंस कैलकुलेटर के अंदर लिख के सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, सेम आंसर आ गया -5.5। जिनका नहीं आया उनको अभी मैं हेल्प आउट कर दूंगा। आपने कुछ करने में गड़बड़ करी है। 2x - 3 अपॉन 4 अल्फा कैलकुलेट से प्लस 5 - x अपॉन 3 अल्फा कैलकुलेट से इक्वल्स टू आया 0। शिफ्ट एंड कैलकुलेट करा तो सॉल्व इज इक्वल टू प्रेस किया तो फाइनल आंसर ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए। इज एवरीवन एबल टू डू इट? इज एवरीवन एबल टू डू इट? अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मुझे बताएं, मैं आपके पास आके, जो ऑब्वियसली फेस टू फेस सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं आपके पास आके आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास।
डन, सबका हो गया। थर्ड वाला, जिन्होंने थर्ड वाला अभी तक ट्राई नहीं किया वो थर्ड वाला ट्राई करें। पी की जगह कैलकुलेटर में एक्स लिखेंगे, ऑब्वियसली कैलकुलेटर के पास अल्फाबेट सिर्फ एक्स ही है फिलहाल। सो आप प्रेस करेंगे 45 माइनस, ब्रैकेट ओपन, एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अल्फा कैलकुलेट दबाएंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 2x, शिफ्ट कैलकुलेट दबाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 14। क्या सबका आंसर आ रहा है? अब आपका हाथ अगर सेट हो जाएगा तो आप रियलाइज करेंगे आपने 30 सेकंड से बहुत कम टाइम में कर लिया होगा। हाथ सेट होने की बात है, ऑब्वियसली जब लर्निंग फेज होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस यू हैव लर्नड इट विल ऑटोमेटिकली बी अ टाइम सेवर। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएं मुझे कैलकुलेटर में। सॉल्यूशन आपके सामने, मैन्युअली सॉल्व करते तो ऐसे सॉल्व करते। अग्री? मैंने मैन्युअल सॉल्व कर दिया है, कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करके दिखाएं। क्या सबका आ गया? क्या किया हमने कैलकुलेटर में? हमने कैलकुलेटर में लिखा 2x-5 अल्फा कैलकुलेट तो इज इक्वल्स टू आ गया 6x-15 शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू प्रेस किया तो x 2.5 आ गया। डू यू ऑल अग्री लेडीज एंड जेंटलमैन? नेक्स्ट, conversion of decimals of fractions into time। प्लीज नोट करें, आपसे बोल रहा है a cyclist travels a distance of 25 kilometers at a speed of 3 kilometers per hour। क्या हमें पता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? डिस्टेंस 25 है, स्पीड 3 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाय 3, 8.33 या 25/33, यस और नो? लेकिन हमसे रिक्वायरमेंट क्या पूछी है? आवर्स एंड मिनट्स में इसको कन्वर्ट करें। अब आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करने की नीड नहीं है, इसको सेट करने की नीड नहीं है। आप कैलकुलेटर में नोट करें, आपको एक ऐसा बटन नजर आएगा, ठीक, ENG के ऊपर। क्या सबको ये बटन ENG के ऊपर नजर आ गया? हैव यू ऑल फाउंड दिस नंबर अबव ENG? कोई ऐसा जिसको बटन ना मिल रहा हो? हैव यू ऑल फाउंड द बटन? नाउ प्रेस दिस बटन। जैसे आपने इस बटन को प्रेस किया तो ये आपको 8 hours 20 minutes and 0 seconds में इसने कन्वर्ट कर दिया। Am I clear? So there is no need of converting it manually because you can do it yourself through the calculator. Clear है ये ट्रिक? So अगर आपको बोला है let's say distance 19 किलोमीटर है और स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम बताइए आवर्स एंड मिनट्स में, जल्दी से। 3 hours 48 minutes, 19 divided by 5, this button, 3 hours 48। सब कंफर्टेबल है? लेट्स से आपको बोला है डिस्टेंस 85 किलोमीटर है
स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। टाइम बताइए। अब देखें, सवाल बाद में खत्म हो रहा है और जवाब पहले आ रहा है। 14 आवर्स 10 मिनट। आर यू ऑल कंफर्टेबल? आर यू ऑल कंफर्टेबल? नेक्स्ट, अक्सर एग्जाम्स में हमें कन्वर्जन करनी होती है किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड या मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसका मैनुअल तरीका आई होप आपको पता है कि जब मुझे किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड में जाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। और अगर मुझे मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर पे जाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3600 अपॉन 1000। कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, अग्री? अगर कैलकुलेटर अलाउड है आपके पेपर में तो आप ये डायरेक्टली काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्लीज प्रेस करें शिफ्ट एंड 8। प्लीज प्रेस शिफ्ट 8। क्या आपने शिफ्ट और 8 प्रेस किया? आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, नजर आ रहा है? थोड़ा सा नीचे करें तो लिखा हुआ नजर आएगा वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर। बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही होती हैं। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको वेलोसिटी, फिलहाल हम क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर सेकंड, तो जहां पे वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, पावर लिखा हुआ है वहां पे प्रेस कर दें 1, क्योंकि वेलोसिटी 1 पे लिखा हुआ है। क्या सब इस स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं? मैं दोबारा बताता हूं। प्रेस करें शिफ्ट और 8, स्क्रॉल डाउन करें तो पहली चीज वेलोसिटी लिखी हुई नजर आएगी, आ गई? प्रेस 1 कर दें। जब आप प्रेस 1 करेंगे तो कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है 1 पर कि क्या आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले पार्ट में मुझे किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड पे कन्वर्ट करना है, तो आई प्रेस 1। जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा मुझे किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर सेकंड, नजर आ रहा है? अब अपने अपने जो की है उसको स्क्रॉल करके किलोमीटर पर आवर से पहले ब्लिंकिंग स्क्रीन को ले आए। जो ब्लिंक कर रहा है ना, ब्लिंक, वो आप उसको पुश कर दें तो वो किलोमीटर पर आवर से पहले लिखा हुआ है, पहले ब्लिंक करना शुरू कर देगा। क्या किलोमीटर पर आवर से पहले आ गया? अब लिख दें 72। तो आपको अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा 72, ब्लिंक 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 हो रहा होगा, किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड, नजर आ रहा है? सिर्फ इक्वल टू प्रेस करें, इसने खुद कन्वर्ट कर दिया, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। इज एवरीवन फॉलोइंग मी? इज एवरीवन फॉलोइंग मी? दूसरा वाला खुद से करें। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 72 की जगह 180 लिख देंगे और आपके पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। शिफ्ट 8 दबाया, स्क्रॉल डाउन किया, 1 दबाया, तो आपके पास किलोमीटर पर आवर आ गया। सब 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 उसको बता रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ आ गया, तो अब आप 72 या 180 जो भी निकालना है वो निकाल लें। ठीक है, सही है। चलें नेक्स्ट, दोबारा से प्रेस करें शिफ्ट 8, स्क्रॉल डाउन, प्रेस 1 वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में हमें क्या करना है? मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर जाना है, तो मैं प्रेस करूंगा 2। जब मैं 2 प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, नजर आ रहा है भाई सबको? जो ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है उसको पुश करके इधर ले आए मीटर्स पर सेकंड से पहले, और जब इससे पहले आ गया तो आप 250 प्रेस कर दें तो ये आ जाएगा 900 किलोमीटर पर आवर। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं।
इसी तरह 400 मीटर्स पर सेकेंड के लिए 1440। तो आपको वो पूरा प्रोसेस करने की नीड नहीं है अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो। इज एवरीवन कंफर्टेबल? इफ यू आर कंफर्टेबल देन करें 40 किलोमीटर पर आवर और करें 600 किलोमीटर पर आवर को, और करें 125 और 675 मीटर्स पर सेकेंड को। चलें, पहला वाला इज 11.1 मीटर्स पर सेकेंड, 166.66, ठीक है। 450 पूरा किलोमीटर पर आवर, 2430 किलोमीटर पर आवर। इज एवरीवन कंफर्टेबल? कैन यू ऑल यूज दिस फंक्शन कंफर्टेबली? सो फार सो गुड। चलें, ये एक सवाल है आपके सामने, ठीक है। इसको मैन्युअली भी सॉल्व करें और उसके बाद कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें। शाबाश, बाकी लोग जल्दी से कर लें। मैन्युअली भी सॉल्व करें और कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें, तेज। अच्छा, किसी ने सवाल भेजा है कि अ, जो मीटर्स पर सेकंड वाला था उसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा। बेटा, ऑप्शन शो इस ऐसे होगा कि आप प्रेस करेंगे शिफ्ट 8। जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट और 8 तो 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करें तो नंबर 1 पे वेलोसिटी लिखा हुआ आएगा। उस नंबर 1 पे जब वेलोसिटी लिखा हुआ आ रहा है तो आपके पास किलोमीटर्स पर आवर और मीटर्स पर सेकेंड के ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं। 1 प्रेस करेंगे तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड, और 2 प्रेस करेंगे तो मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा। आई होप मिल गया है।
और फिर से हम इस सवाल पे आ चुके हैं। और है जी, Jack opens a bank account paying simple interest. He pays 800 and leaves it in account for 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives 920. So interest is 920 minus 800, which is 120. I hope everyone knows interest is PRT over 100. Interest is 120. Amount is 800. Rate is what we need to find. Time is 4 years upon 100. Agreed? अब या तो मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करूं या मैं कैलकुलेटर में जो इक्वेशन वाला फंक्शन अभी हमने सीखा था मैं उस फंक्शन को अप्लाई कर दूं। सो अगर मैं उस फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा 120 अल्फा कैलकुलेट, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 800 आर की जगह एक्स इंटू 4 अपॉन 100। शिफ्ट कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.75%। एम आई क्लियर? तुम डिवाइड बाय 4 करना भूल गए थे इसलिए तुम्हारा 15 आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन? चले नेक्स्ट खुद से करें जल्दी से। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। कर लो सॉल्व पूरा, जल्दबाजी में ना करो। All right, once again, interest is PRT over 100. 681 minus 600, 81 is the interest. Principal is 600, rate is what we need to find, time is 3 years upon 100. So let's form the equation and put it in the calculator. 81 is equals to 600 into r की जगह x into 3 upon 100, and the final answer is 4.5%. Is this clear? All right, once again, now you can solve all these questions directly using the calculator, and I want you all to solve this within there are there are 4 questions basically. This is the first question जो यहाँ पे solve हुआ है, and 3 और सवाल हैं। 30 seconds each, 2 minutes, your time starts now. There are 4 questions altogether on the screen.
I want you all to solve all these 4 questions within 30 seconds each. So that is a total of 2 minutes. Hurry up. Done? All 4? नहीं ना, सबसे पहला वाला सवाल ये मैंने बताया ना, एक ये है और 3 ये है। 4 सवाल हैं, 2 मिनट दिए थे जो खत्म हो चुके। और है जी। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में इक्वेशंस डायरेक्टली पुट इन करेंगे। एक्स ऑन के नीचे, ऑन जो बटन है उसके नीचे एक्स है। तो वो लोग जो ऑनलाइन ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑन का बटन कैसे प्रेस होगा, एक्स का बटन कैसे प्रेस होगा, तो ऑन के नीचे एक्स है। x+1 प्लस x+2 अल्फा कैलकुलेट से इज इक्वल्स टू आ जाएगा 84, शिफ्ट कैलकुलेट से सॉल्व हो जाएगा, एंड x इज 27। सबका आ गया? हैव यू ऑल मैनेज टू सॉल्व इट? ऑलराइट। उसके बाद दूसरी इक्वेशन 3x+5 अल्फा कैलकुलेट 9x+3 ब्रैकेट ओपन x+5 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट कैलकुलेट is equals to -1.11, -1.11. The sum of 3 consecutive even numbers. If consecutive even numbers होते हैं तो पहली टर्म x है, दूसरी टर्म x+2 है, तीसरी टर्म x+4 है। x+2 x+4 is equals to 24. Agreed? So x plus x+2 plus x+4, shift calculate
alpha calculate is 24, shift calculate, and the final answer is 6. X is 6. And the last part is 3x plus 4 upon 9x plus 5. अल्फा कैलकुलेट से इक्वल्स टू आ जाएगा 5 अपॉन 6, शिफ्ट कैलकुलेट से सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रेस कर लें, x is minus 0.037. Am I clear? Am I clear everyone? एक और फीचर हम कैलकुलेटर का डिस्कस करते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर द डे. दिस इज द लास्ट फीचर. किसी को अगर कैलकुलेटर की और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हो तो मेरे YouTube चैनल पे पूरी सीरीज है उसकी, जिसमें मैंने सारे फंक्शंस कैलकुलेटर के डिस्कस किए हुए. 21 एपिसोड्स पे वो सीरीज है, एंड उसमें एम्यूलेटर डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर, तो जो भी फंक्शन है वो कैलकुलेटर पे प्रेस हो रहा होगा. ठीक है, अहमद साया ऑफिशियल मेरे नाम से ही है, अहमद साया ऑफिशियल. तो उससे आप YouTube चैनल का लिंक से आप एक्सेस कर सकेंगे, और वो सारी सीरीज ऑफ कैलकुलेटर आप उसके जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो आप बआसानी हासिल कर सकेंगे. ठीक है, सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है कैलकुलेटर में, प्लीज आप लोग कैलकुलेटर के अंदर प्रेस करें मेन्यू, एंड मेन्यू प्रेस करके आप प्रेस करें डैश मेन्यू, एंड बेसिकली ए है जो रेड से लिखा हुआ है. कैलकुलेटर के अंदर ये वाला बटन नजर आ रहा है, ये वाला बटन नजर आ रहा है सबको? मेन्यू और ये वाला बटन दबा दें. पहले मेन्यू दबाएं और फिर ये वाला बटन दबाएं. प्रेस किया मेन्यू और ये वाला बटन, तो आपसे पूछ रहा है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है या पॉलिनोमियल सॉल्व करनी है. लेट्स से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मैं 1 प्रेस कर दूंगा. जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस कितने अननोन वाली. अगर सिर्फ x और y हैं तो 2 अननोन्स हैं, x y z हैं तो 3 अननोन्स हैं. आर यू ऑल विद मी? सो लेट्स से मेरे 2 अननोन्स हैं, तो मैं प्रेस कर दूंगा 2. जैसे ही मैं प्रेस करूंगा 2, मुझे स्क्रीन पे नजर आएगा x y 0 लिखा हुआ. अब अगर ये इक्वेशन है मेरी, तो मैं इसको कैसे इंसर्ट करूंगा, प्लीज मेरे साथ साथ इंसर्ट करने की कोशिश करें. 3 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 17 इज इक्वल्स टू, हर चीज के बाद इज इक्वल्स टू दबाना है. 3 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 17 इज इक्वल्स टू. प्रेस कर लिया, प्रेस कर लिया. मैं तो अभी तक उधर पहुंचा ही नहीं हूं बेटा, मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करो. इसके बाद सेकंड इक्वेशन में 2 इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू 19 इज इक्वल्स टू. अग्री? अब जब सब आ गया तो आपकी स्क्रीन पे अगर ये लिखा हुआ नजर आ गया आपको 3x plus 4y is equal to 17, 2x minus 5y is equal to 19, एक और बार इक्वल टू प्रेस कर दें. जब आप एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो x is equal to 7 आ जाएगा, और एक और बार प्रेस कर देंगे तो y is equals to -1 आ जाएगा. कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. Am I clear everyone? Am I clear कैसे हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, समझ में आया? नहीं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस हैं फिलहाल जी. चलें, ये एक सवाल स्क्रीन पे है, इसका सॉल्यूशन भी आपको सामने नजर आ रहा है. आई वांट यू ऑल टू अप्लाई दिस इन द कैलकुलेटर एंड सी इफ यू कैन गेट द सेम आंसर. और अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही हो, जो फेस टू फेस सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो मुझे बुलवाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको हेल्प आउट करके जाऊंगा. अब नॉर्मली इस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैन्युअली कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगेंगे. कैलकुलेटर में 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाएगा. सो इसलिए एज अ वेरिफिकेशन टूल इस्तेमाल होता है.
माइनस जैसे नॉर्मली माइनस का बटन है वैसे डलेगा। माइनस का बटन देखें, 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई का मतलब है -1 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू। आपकी स्क्रीन पे जब ये लिखा हुआ आ जाए, एक और बार इक्वल्स टू प्रेस करें तो x 3/2 आ जाएगा। फिर एक और बार इक्वल्स टू प्रेस करें, y -3 आ जाएगा। अब अगर कोई चाहता है मैं उसके पास आके उसको समझा के जाऊं तो हाथ उठा ले। मीनवाइल जिन लोगों से हो गया है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या सबका आ गया? सबका x2 और y-1 आ गया। क्या किया दोबारा से कर लेते हैं। 3 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू। हर चीज प्रेस कर करके इक्वल टू प्रेस किया तो x2 एंड y-। क्या सब कंफर्टेबल हो गए? क्या सब सॉल्व करने वाली पोजीशन में आ गए? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्व इट एंड विल वाइंड इट अप। हरी अप। अभी नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? शाबाश, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसका क्या मतलब होता है? लाइंस आर पैरेलल। जब नो सॉल्यूशन आ जाए तो इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल, ग्रेडियंट्स आर सेम, द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो कैलकुलेटर आपको ये भी बता देगा कि नो सॉल्यूशन है, यानी ये बता देगा कि लाइंस पैरेलल है। अग्री? सब फॉलो कर रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? अब अगर किसी का कोई सवाल, अभी तक हमने जो चीजें समझी आज उसमें किसी ने कोई चीज पूछनी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज, दोज अटेंडिंग फेस टू फेस रेज योर हैंड्स। अगर कोई मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों का सवाल बता दे कोई, अगर ताकि अगर जो लोग लाइव सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं अगर उनका कोई सवाल है तो प्लीज काइंडली आप लोग लिख दें कमेंट्स में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दे दूं। वी हैव अ फ्यू मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स। इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। मीनवाइल जो लोग फेस टू फेस सेशन अटेंड कर रहे हैं प्लीज कैलकुलेटर्स रिटर्न कर दीजिए जो अबाको की तरफ से आपको सेशन के लिए दिए गए थे, उनका वॉलंटियर आपसे कलेक्ट कर लेगा। जी क्वेश्चन है बेटा? जी बेटा। जी जी, 2 डिजिट नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है, वो इतना टाइम फिलहाल नहीं है कि हम उसकी टेक्निक पे जाएं, बट हर उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ सकते हैं। अभी तो नहीं है जी। ये पीडीएफ शेयर, ये पूरी जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि हम यूट्यूब लाइव अटेंड कर रहे हैं। आपको यूट्यूब का लिंक जो है ना वो सेंड कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। आई होप फरीना हम लोग इनको ये लिंक सेंड कर सकते हैं ना, इसका जो सेशन हुआ है इस सेशन का लिंक भेजा जा सकता है ना इनको? जी, आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा। Yes, this will be uploaded. No solution means that the lines are parallel. ठीक है?
वेयर विल वी गेट एक्स फ्रॉम? बेटा एक्स जो है ना, वो अगर आप अपना कैलकुलेटर, मैं एक काम करता हूँ कहीं पे अगर मैं आपको कैलकुलेटर की शक्ल दिखा सकूं मेरे पूरे उसमें कहीं। अच्छा चलें चलें, देखें, ये आपका कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में ऑन का बटन है। इस ऑन के बटन के नीचे एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स है। कौन सा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए? ये मैं ऐसे ऑनलाइन तो नहीं बता सकता ना कि कौन सा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। आप मल्टीपल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं। वो कैलकुलेटर यूज करें जो लेटेस्ट मॉडल हो, 991EX। 991EX होना चाहिए। ब्रांड आप खुद देख लें कि कौन सा ब्रांड आपको खरीदना है। मैं ब्रांड के बारे में नहीं बता सकता, बहुत सारे ब्रांड्स में 991EX आता है। ठीक है, आप जो कंफर्टेबल हो वो ब्रांड खरीद लें। अच्छा देखें, ये जो सारे कैलकुलेटर टेक्निक्स है ना, ये लेटेस्ट वाले कैलकुलेटर यानी 991EX की हैं। 991EX अबाको में आता है, कैसियो में आता है, इन दोनों में से कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हैं जो आप कंफर्टेबली खरीद सकते हो। आसान कर देता हूं बात, ठीक है, बट दैट इज अप टू यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही खरीदो वही खरीदो, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो वो खरीद लें। ठीक है, एंड उसमें ये सारे फीचर्स बहुत इजीली चलेंगे। अगर आपका आउटडेटेड कैलकुलेटर है तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टी होगी। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि अपग्रेडेड वर्जन हो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आई थिंक जिन लोगों ने ऑनलाइन रेलेवेंट सवाल पूछे थे हमने वो जवाब दे दिए। फेस टू फेस किसी का कोई सवाल है? थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जाएं जी अपनी जिंदगी। एक बिफोर यू गो, थैंक यू। मैं ऑनलाइन सेशन फिलहाल एंड करता हूं ताकि